नमस्कार, 4 बजे के समाचार में मैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं, साइमा खान। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। देश के साथ पूरा विश्व मना रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ मुख्य समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग, कहा कि योग और साधना की भूमि है जम्मू कश्मीर। पूरी दुनिया में बढ़ा योग के प्रति आकर्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है योग। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों समेत तमाम नेताओं ने भी किया योग अभ्यास। विश्व के अलग अलग देशों में पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है योग दिवस। अमेरिका, चीन, जापान, लंदन और श्रीलंका समेत पूरी दुनिया कर रही है योग। शराब नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी की चुनौती। हाई कोर्ट में आज ही सुनवाई की मांग। तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड के 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत। कुड्डालोर जेल भेजे गए सभी आरोपी। भाजपा ने तमिलनाडु सरकार पर लगाया माफियों को संरक्षण देने का आरोप। मामले की सीबीआई जांच की मांग। भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंच रही हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर भी होगी बातचीत। भारत में आगे बढ़ा मानसून। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मिली राहत। अगले कुछ दिनों में देश के मध्य हिस्सों में होगी बारिश। मैदानी इलाकों में लू से मिलेगी राहत। T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने डकवर्थ लुइस नियम के तहत बांग्लादेश को हराकर सुपर 8 में दर्ज की अपनी पहली जीत। और आइए सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल इसको संबोधित कर रहे हैं। Sir, Siddhant from WION. My question is on the Canadian Parliament. They honoring Niger, who is a listed terrorist here in India. Your reaction? And my second question is on China. There have been reports of China keen on the direct plane service. What has been the Indian reaction on that? Hi, sir. It's Krishan Kaushik from Reuters. There was a delegation of US lawmakers recently that met the Dalai Lama. I wanted to check if India has any comment on that. Okay. Any more questions on the US delegation so that we can all answer it together? Please, Uma. खासतौर पर सर आपका ध्यान चीन की तरफ से आने वाले बयानों की तरफ खींचना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने जो कोर इंटरेस्ट्स हैं चाइना की, उसका ध्यान रखने के लिए अमेरिका को कहा। और ऐसे में जबकि वहाँ धर्मशाला में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से या हमारी सरकार की तरफ से कोई मौजूद नहीं था, क्या जो बयान है नैन्सी पेलोसी की, उससे भारत अपने आप को डिसोसिएट करता है? ऋषभ, आपका सवाल इसी पे है जी, बताइए। Good evening, sir. Rishabh from Times Now. Sir, the congressional delegation also met External Affairs Minister as well as the Prime Minister. If we can have details on what was discussed and also India's stand on the statements made by Nancy Pelosi, the former Speaker of US Congress. Okay. Any more question on this? Sudhi. Sir, Shudhiranjan from Bloomberg, sir. We've seen the American delegation's, statements in Dharamshala saying that U.S. policy on China has changed, and the bill kind of shows that there is a distinct change in U.S. policy. What is India's policy towards China? Does one China policy still stand?
Manas? Good evening, Manas from PTI. Dalai Lama's succession is becoming an important geopolitical issue. Almost all the major powers have spoken about their position, including US. So what is India's position on Dalai Lama's succession? Thank you. Okay. So with that, we have rounded up the questions on the visit of the US congressional delegation, I hope. So let me begin with the first, with answers to the question on US delegation which visited Delhi and Dharamshala recently. It was a 7-member congressional delegation which visited India from 16th to 20th. It was led by the House of Representative, Chairman of the House Foreign Affairs Committee, Representative Michael McCaul. They visited Dharamshala, as you know, on 18th and 19th, and thereafter they also had a meeting with a call on the Prime Minister. They also met External Affairs Minister and the Commerce and Industry Minister. All aspects of, various aspects of India-US comprehensive strategic partnership was discussed in the meetings with the Prime Minister and with External Affairs and Commerce Minister. More on that you would have seen. There's a press release also which was issued after the call on the Prime Minister. So I will refer you to that. As far as the question of Dalai Lama is concerned, I would like to reiterate what our position is. The Government of India's position on His Holiness the Dalai Lama has been very clear and consistent. He is a revered religious leader and is deeply respected by the people of India. His Holiness is accorded due courtesies and freedom to conduct his religious and spiritual activities. As regards the statements made by the US delegation, I would say that you take your questions to them because they'll be in a better position to answer as to what they mean by it and what it is for them to answer these questions. So with that, I'll come to other questions. Yeshi, to begin with yours. Death toll in Hajj. A large number of Indian pilgrims visit Hajj every year. This year, 175,000 Indian pilgrims have visited Hajj so far. The core Hajj period is from, I think, May 9 to 22nd of July. So far, we've lost, or there are 98 Indians, pilgrims who have died in Hajj. Sorry? Okay. I'll repeat my, let me get the figures right, please. So I was talking about each year we have a large number of Indians visiting Hajj for pilgrimage. This year we have 175,000 Indians who've already visited Hajj. The core Hajj period is from 9th May to 22nd of July. And so far we've lost 98 of our citizens. These deaths have happened on account of natural illness, natural causes, chronic illness, as also old age. On the day of Arafat, 6 Indians died, and 4 Indians have died on account of accidents. I would also like to tell you that last year the figure of Indians who died in Hajj was 187. 187. टू आंसर कदमनी आपका सवाल कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ जो हमारा हज मिशन जेद्दा में है वो बड़े पैमाने पे काम करता है. वहाँ पर मेडिकल मिशन है, हॉस्पिटल हैं, एम्बुलेंसेज हैं और जो सारी व्यवस्था है हमारे लोगों को देखरेख के लिए है. और जो भी वहाँ पर कुछ इस प्रकार का हादसा होता है हम तुरंत उनके परिवारजनों से, लोगों से मिलते हैं और जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो काम हम लोग करते हैं. उनका सबका ध्यान रखा जाता है. आप देखेंगे अगर आप जो हज मिशन का सोशल मीडिया हैंडल्स है या उसके अलावा जो प्रेस विज्ञप्ति वहाँ से जारी होता है उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी विस्तार में इंतजाम वहाँ किया जाता है लोगों के लिए. इस बार सुना है कि चूँकि बहुत गर्मी रही और ख़ासकर अराफात के दिन, जिस दिन जो वहाँ पर जो लोग ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी लोग उस दिन
हीट वेव के कारण उन हताहत हुए। कई एक दूसरे देशों के लोग उसमें हताहत ज़्यादा हुए। हमारे यहाँ से 6 लोग डे ऑफ अराफात के दिन उनका निधन हुआ। So on the French journalist, yes, Mr. Sebastian Farsis, he's an OCI card holder. If you are an OCI card holder, you need permission or work permit to carry on your journalistic activities. To the best of my knowledge, he applied in May of 2024, and his application is still under consideration. The question of his leaving the country, that is a decision that he has to, it's for him to take. If he has taken, that's fine, but his visa application is still under consideration. Sorry, his work permit application is still under consideration. He had applied it, reapplied it here in May of 2024. मधु, आपका सवाल गलवान को लेके है। गलवान को लेके हम लोग पहले भी कहा है कि दो तरफा हम लोग की बात चल रही है, एक मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल पे और दूसरे राजनयिक लेवल पे। जब ज्यों-ज्यों हमारी ये बातचीत चलती रहती है, मैं आपको इस मंच से और उसके अलावा प्रेस की विज्ञप्ति के जरिए आपको बताते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस पे शांति बहाल हो ताकि चीजें आगे जा सके। Siddhant, your question regarding Canadian Parliament observing 2-minute silence. See, we naturally oppose any moves giving political space to extremism and those advocating violence. So that is our position on this particular issue that you raised. कनाडा के पार्लियामेंट में जो वहाँ पर गतिविधि हुई, उसके लेके हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो राजनयिक स्पेस दिया जाता है एक्सट्रीमिस्ट को और जो लोग हिंसा भड़काने का काम करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग अपोज करते हैं। Siddhant, also to answer your question regarding economic linkages, business, etc. On that, we have been very consistent in our articulation. I have spoken from this platform. Our External Affairs Minister has spoken. Our leadership has spoken that peace and tranquility on the border is important for our ties with China to become normal. Krishan, I did answer your question. So with that, we can move forward. Okay. Hi, Samira Hussain from BBC Yes, News. Samira, please. Hi. There is an upcoming debate in the United States between President Biden and President Trump. I am wondering what the Indian take is on the upcoming presidential election and what you may or may not be anticipating in terms of whichever person comes into power again. Reza? Reza from Hindustan Times. Following the deaths of 2 more Indians serving with the Russian military, India had asked for a verified stop to the recruitment of Indians. Have we heard back from the Russians on this? Do we have any figures of how many Indians are actually serving with the Russian forces and how many have asked to come back? Okay. Shruti. Sir, Shruti Ranjan again, thank you for allowing me another question, sir. Sir, External Affairs Minister was in Sri Lanka. If you could give us some more details on his discussions, because he met a lot of political leaders across the spectrum. Also wondering, did India raise the Kachitibu issue, which we saw being raised a couple of weeks ago? And therefore, what was Sri Lanka's response? Enjoy. Yes, sir. So, in these last few weeks and more,
more than one dossier on Khalistani terrorists have been given from different sections of the government to Canada. Have we got a reply? And if there is a reply, what is it? Manas? Manas from PTI. Since April, we have seen media reports in the Australian media about expulsion of Indians, unspecified number of Indian spies from Australia, since reports of nest of spies came out in 2020. So could you verify whether 4 Indians have been expelled by Australia as reported by the Australian media? And has there been any reciprocal action? तो आप ये विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता देख रहे थे, जहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल इसको संबोधित कर रहे थे। कई संवाददाताओं के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने यूएस डेलीगेशन जो धर्मशाला का जिसने जो दौरा करने के लिए आया था उसकी बात उन्होंने बताई, और साथ ही साथ उन्होंने हज पर जो 98 भारतीयों की मौत हुई है उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो प्राकृतिक तौर पर उनकी मौत हुई है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है वहाँ पर, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हुई और उनकी मौत की खबर वहाँ से आई है, और एक पूरी प्रक्रिया चल रही है जिसके तहत वो वहाँ से अब उनको लेकर आया जाएगा। और साथ ही साथ गलवान मुद्दे पर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बातचीत जारी है और भारत हमेशा से ही सीमा पर शांति और अमन को तरजीह देता रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे और आप देखते रहिए DD न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे योग दिवस और उससे जुड़ी खबरों की। आज पूरे देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। योग दिवस को खास बनाने के लिए और समाज में जागरूकता फैलाने के इरादे से राष्ट्रपति भवन में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इस मौके पर खुद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग किया। अब हम इसी में तीसरी सेंटर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग दिवस मनाया। डल झील के किनारे होने वाले कार्यक्रम में बारिश से हालांकि थोड़ी सी बाधा पहुंची, लेकिन लोगों के उत्साह की बदौलत ये काफी सफल रहा। गौरतलब है कि इस बार योग दिवस की थीम योग स्वयं और समाज के लिए है। ये जो दृश्य है ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है। ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है।
श्रीनगर के डल झील के किनारे सुबह की बारिश 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम के उत्साह और उमंग को कम नहीं कर सकी। यहाँ के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी में भारी संख्या में युवा पूरे जोश के साथ योग के अभ्यास करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग सत्र के प्रतिभागियों से मुलाकात की और योग सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, वह जम्मू कश्मीर के पर्यटन को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं। एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, अपैरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं। योग सत्र के दौरान पीएम मोदी ने ध्यान के साथ ही योग के सभी आसनों का अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग केवल एक विधा नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि जब वे विश्व के बड़े नेताओं से मिलते हैं तो वे उनसे योग की चर्चा करते हैं। श्रीनगर में भी जो मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसका उद्देश्य योगाभ्यास के जरिए हजारों लोगों को एकजुट करना और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देना है। जिन युवाओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की, वो उनके लिए यादगार पल रहा। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने हर एक आसन हमारे साथ किया और उसके बाद थोड़ा देर हमसे बात भी की। उन्होंने इनफैक्ट ये पूछा हम सब क्या क्या कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदरता के साथ हम सबके साथ योग किया और अंत में उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया कि जो रोज़ अपना रहे हैं योग, वो कहीं ना कहीं अपनी निरोगी काया को पाने के लिए तैयार हैं और हमें कहीं ना कहीं योग रोज़ अपनाना चाहिए। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें इनकरेज किया, बिकॉज आफ्टर बारिश भी हम लोग सब इतना ब्रेव होके कर रहे हैं एंड नॉट जस्ट अस, आउटसाइड आल्सो एवरीबडी इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड ही एक्नॉलेज दैट, सो दैट इज आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मोदी जी हमारे सामने बैठे थे, पहले हम टीवी पे देखा करते थे लेकिन आज हमारे सामने थे तो बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस मेगा इवेंट and practice along with our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji.
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। ब्यूरो इनपुट के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में हुए योग दिवस कार्यक्रम को लेकर खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि श्रीनगर में डल झील ने इस साल योग दिवस कार्यक्रम के लिए एक अद्भुत माहौल प्रदान किया, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य को दर्शाता है। बारिश के बावजूद वहां एकत्र हुए असंख्य लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने योग अभ्यास किया। अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में योग अभ्यास किया। भारतीय संस्कृति में योग का बड़ा महत्व है। योग आध्यात्मिक लाभ प्रदान करने वाली एक प्राचीन परंपरा है। आज भारत सहित पूरे विश्व में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। पूरे देश में कई जगहों पर योग किया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस अवसर पर योग को बढ़ावा देते हुए कहा कि योग का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से खास बातचीत की डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने। आज योग दिवस के अवसर पर 10वां योग दिवस है, क्या कहना चाहिए? मैं हमेशा की तरह आज भी अपने मंत्रालय के जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, सारे अधिकारियों, कर्मचारी, सब साथियों के साथ में इस बहुत ही खूबसूरत बुद्ध भगवान का प्रतिमा के नीचे में हम सब ने बैठ कर के योग दिवस मनाया। हालांकि आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन हर समय योग करते रहते हैं, लेकिन आज सामूहिक रूप से पूरा विश्व में कर रहे हैं। भारत में भी हर जगह योग दिवस मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र मंत्री के अपने अपने स्तर पर भी मनाया जा रहा है और आम आदमी हो, कोई भी हो, हर एक भारतीय आज देश पर मनाया जा रहा है और फिर विदेशों में भी सब जगह मनाया जा रहा है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर सबको मेरा तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और स्वस्थ रहे, योग करके सब अपने जीवन में खुशहाली बना रहे, ये मैं दुआ करता हूं। संदेश योग का दिवस में तो हम यही कह सकते हैं कि आप योग कीजिए, आप निरोग रहिए और खुशी रहिए और स्वस्थ रहिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू थे, जिनका कहना है कि योग हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। तो योग करने से आप अपने ही साथ नहीं, अपना मिलन आत्मा का परमात्मा के साथ भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन पीके के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आदि कैलाश पर्वत पर योग अभ्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मिजोरम के हवला इंडोर स्टेडियम में मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू खम्बमपति ने लोगों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। स्टेडियम में लोगों ने एकजुट होकर भाग लिया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि ये वैश्विक कार्यक्रम योग के माध्यम से स्वास्थ्य, कल्याण और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए सभी लोगों को एकजुट करता है। has transcended geographical and cultural boundaries to become a global phenomenon. It embodies the very essence of harmony and peace which our world needs more than ever. मणिपुर के इम्फाल में खुमान लैंपक इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया और इसमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी भाग लिया। बीरेन सिंह ने उल्लेख किया कि म्यांमार से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में नशीली दवाओं और मानव तस्करी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की चुनौती अभी भी बनी हुई है।
और देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां काफी दिन पहले से ही चल रही थीं और इसी बीच दिल्ली किंग्सवे कैंप के रेडियो कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। भारतीय सेना ने नॉर्दर्न फ्रंटियर पर बर्फ में योग अभ्यास किया और आप भी देखिए ये सुंदर तस्वीरें। वहीं देश की सुरक्षा में लगे जवानों ने भी योग के जरिए खुद में नई ऊर्जा का संचार किया। हालांकि उनके लिए ये रोज की दिनचर्या है, लेकिन आज योग दिवस पर योग को लेकर इनका जोश हाई है। तस्वीरें INS विक्रमादित्य पर भारतीय नौसेना के जवानों की है। लद्दाख के पैंगोंग झील के पास योग ये देखा जा सकता है और इसी के साथ ही ITBP के जवानों ने भी सिक्किम में योग अभ्यास किया और साथ ही साथ जवानों ने भारत चीन सीमा पर 15,000 फीट की अधिक की ऊंचाई पर योग किया और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने भी अमृतसर में योग अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विभिन्न सुरक्षा बलों के कर्मी भी योग कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। त्रिपुरा के ऊनाकोटी पुरातात्विक स्थल पर भी योग से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां BSF कर्मियों ने योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इस मौके पर CRPF के DG अनीस दयाल सिंह कोबरा कमांडो के साथ छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले जगदलपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अधिकारियों ने जवानों और परिजनों के साथ मिलकर योग अभ्यास किया। भारतीय तट रक्षक के अधिकारियों और जवानों ने नई दिल्ली में योग अभ्यास किया। वहीं 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कन्याकुमारी में लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग अभ्यास किया। इन लोगों से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। What is your comment about today's historic day yoga celebration at Vivekananda Rock Memorial? It's a historic moment. I am Professor Dr. N.J. Muthukumar, Director General Sun Council for Research in Siddha. On behalf of Ministry of Ayush, Government of India, we have celebrated this International Day of Yoga in the historical place where the Honorable Prime Minister Modi have ordered for us to conduct the yoga session in this historic iconic place. हमारा बहुत खुशी है। हम कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक
मेमोरियल में हम योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे हम करते। हमारा प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र भाई मोदी जी से 2014 में मिनिस्ट्री स्टार्ट किया था। ऐसे अभी तक हम 10 साल का हम योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। We are very happy to do the yoga in memorable place like Vivekananda Rock, and these kind of activities really that spiritual and body-wise our inspiration. Then more powerful we can analyze that yoga is very essential for the every woman nowadays. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी परिसर में समुद्र के बीच आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में योग दिवस का आयोजन किया गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन संतिल के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष योग शिविर आयोजित किया गया। इस योग शिविर में लोगों ने मिलकर सामूहिक योग अभ्यास किया। और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में योग अभ्यास किया गया। और बताते हैं आपको, सारी तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका, श्रीलंका, जापान और लंदन की ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से लोग यहां पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। फिजी की राजधानी सुवा में भारतीय उच्चायोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर फिजी के प्रधानमंत्री सितवनी राबुका मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शामिल होकर बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास किया। और कीनिया की राजधानी नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र एवं भारतीय नैरोबी उच्चायोग संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 1 दशक पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वयं और समाज के लिए योग थीम के तहत राजनयिक संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी और केन्याई योग प्रेमी एकजुट हुए। और नेपाल में भी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास किया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी तमाम खबरें और यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है।
आगे की खबरें जान लेते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी ने चुनौती दी है। केजरीवाल के तिहाड़ जेल से छूटने से पहले ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि ईडी की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी। कल राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। और इसी पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता विकास सारथी थे। विकास, एक तरह से कह सकते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद बुरी खबर है, क्योंकि कल ही उनको जमानत मिली थी और आज उनकी जमानत पर रोक लग गई है। क्या जानकारी है पूरी, किस बात पर उन्होंने रोक लगाई है? बिल्कुल, देखिए, ये जो स्टे सुबह सुप्रीम हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था वो आगे जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा, ये दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद साफ होगा कि क्या कोर्ट आज ऑर्डर रिजर्व करता है या अभी तुरंत कोर्ट इस पर कोई ऑर्डर पास करता है। जहां तक बहस की बात है, सुबह से ईडी ने ये कहा कि उनको लोअर कोर्ट में एक तो पर्याप्त समय नहीं दिया गया आर्ग्यूमेंट करने के लिए, इसके अलावा ईडी ये चाहती थी कि उसको कुछ रिटर्न सबमिशन फाइल करने दिए जाएं, उसकी भी अनुमति लोअर कोर्ट से नहीं दी गई। अब ईडी का ये कहना है कि अगर आपने हमारे पूरी बहस ना तो सुनी और ना ही हमारे दस्तावेज जो हम जमा देना चाहते थे, दाखिल करना चाहते थे, वो देखे, आपने ये आदेश दिया है, इसमें बहुत सारी फैक्चुअल और लीगल गलतियां हैं और इसी को उठाते हुए ईडी लगातार सुबह से बहस कर रहा था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जिन बातों को उठा रहा है असल में उनकी जरूरत इस स्टेज पर नहीं है, क्योंकि यहां पर जिन हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला दिया जा रहा है वो फैसले दरअसल सीधे सीधे जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी उससे जुड़े थे। तो इसलिए जब जमानत की बात आती है तो वो ऑर्डर्स को यहां पर साइट नहीं किया जाना चाहिए और ईडी की जो पूरी दलील है वो कहीं ना कहीं ठहरती नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से दलील दी जा रही है। बहस लगभग पूरी हो चुकी है और अब ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बिल्कुल अपने अंतिम दौर की जो भी उनकी बहस है, दलील है, वो कोर्ट के सामने रख रहे हैं। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट के आदेश के मुताबिक जमानत पर बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। दिन भर की बहस लगभग अब खत्म होने के कगार पर है। विकास, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर उनको जमानत नहीं मिलती है और हाईकोर्ट इस बात पे राजी हो जाता है कि अभी सुनवाई और चलेगी और ईडी की भी बात सुनी जाएगी, तो अभी तक कितना लंबा वक्त लग सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें ये जो पूरा जो चुनौती दी गई है ईडी की ओर से, उसमें स्टे दिया है कोर्ट ने। जहां तक बेल कैंसिलेशन अगर चाहता है ईडी तो उसमें तो और ज्यादा विस्तार से सुनवाई की जरूरत होगी। ऐसे में जैसा मैं कह रहा था कि थोड़ी देर में स्थिति और बेहतर स्पष्ट हो पाएगी कि क्या आज की बहस पूरी होने के बाद ये मुद्दा सुलझेगा या फिर हाईकोर्ट को इस तरह की डायरेक्शंस देगा जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ सकता है, ये जानने के लिए कि क्या उनको तिहाड़ से बाहर आने में ये फैसला मददगार होगा या नहीं होगा, जमानत उनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये स्थिति स्पष्ट होने में थोड़ा सा वक्त अभी लग सकता है। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली जल संकट को लेकर आप सरकार पर पलटवार किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि हरियाणा सरकार दिल्ली को पर्याप्त पानी दे रही है, अगर आप पानी की कालाबाजारी रोक ले तो दिल्ली को आराम से पानी मिल सकता है। पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री करते हैं, ये उसको रोकने की बजाय सिर्फ सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। कल हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उनके जल मंत्री ने आज सुबह भी पूरा स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली को हरियाणा जितना पानी देना चाहिए उससे अधिक दे रहा है, उस पर आतिशी का कोई जवाब नहीं आता। हिमाचल से पानी मांगने की इनकी कुव्वत नहीं है, लेकिन जानबूझकर राजनीति करना पानी के मामले पर, अगर ये चोरी और कालाबाजारी रोक ले तो दिल्ली में को पानी आराम से मिल सकता है। वहीं तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी के मामले में एक बड़ी संख्या में 47 लोगों की यहां पर मौत हुई थी। वहीं इस मामले के 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और तीनों को कुडालोर जेल से ले जाया गया है, जहां जिला अदालत ने 3 आरोपियों गोविंद राज, दामा डोरन और विजया को 5 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
तमिलनाडु में नकली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर भाजपा ने डीएमके सरकार पर करारा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा है कि तमिलनाडु सरकार शराब माफियों को संरक्षण दे रही है और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पिछले वर्ष भी हमने देखा कि इस प्रकार से अवैध शराब के चलते लगभग 20 लोगों से ज्यादा की जानें गई थी। उस समय पर भी आगाह कराया गया था, परंतु आज तो साफ हो चुका है। जब लगभग 50 मौतें हुई हैं तो डीएमके इस प्रकार का रवैया इसलिए अपना रही है क्योंकि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, ये एक स्टेट पेट्रोनाइज्ड मर्डर और स्टेट संरक्षण दे रहा है उन लोगों को जिन्होंने ये हत्याएं करवाई। क्योंकि इस पूरे अवैध शराब के धंधे में डीएमके के नेताओं का, डीएमके के मंत्रियों का और डीएमके के कार्यकर्ताओं का पूरा नेक्सस चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो स्टालिन जी आप सीबीआई की जांच के लिए हामी क्यों नहीं देते? अगर ऐसा नहीं है तो स्टालिन जी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप एक्साइज और प्रोहिबिशन मंत्री को अभी तक हटा नहीं पा रहे? मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इसके अलावा सीएम लालदुहोमा के साथ आया प्रतिनिधिमंडल भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना और अन्य मुद्दों की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा वाराणसी के दौरे पर हैं। ए.के. शर्मा ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया है कि सरकार 24 घंटे बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही बिजली की कीमत में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, जबकि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री वाराणसी में हैं। हमसे बातचीत करने के लिए ए.के. शर्मा जी, पहले तो जो खास तौर से बिजली की ही हम बात करेंगे आपसे। गर्मी का दिन है, बिजली की शिकायत है लोगों की, बार बार बिजली कट रही है, इसको आप कैसे ले रहे हैं? वर्तमान में गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है और उसके चलते बिजली की डिमांड बहुत बढ़ गई है। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने का हमारा पूरा प्रयास है। लगभग 1 लाख किलोमीटर जर्जर तारों को बदल करके नए तार लगाए गए हैं। लगभग 6 लाख नए ट्रांसफार्मर या तो नए लगे हैं या तो उन्हें उच्चीकृत करके उनकी क्षमता बढ़ाई गई है। उसी प्रकार लगभग 19 लाख खंभे लगाए गए हैं जो जर्जर हो गए थे। तो सैकड़ों की तादाद में नए उपकेंद्र बनाए गए हैं। बिजली की जो यूनिट है उस पर भी कीमत बढ़ाने की आप लोग ऐसी कुछ सोच रहे हैं क्या? ऐसी कोई बात फिलहाल हमारे ध्यान में नहीं है। 4 साल से उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमतें बढ़ी नहीं हैं, बिजली के दर बढ़े नहीं हैं। हमारी योजना में वो एक महत्वपूर्ण काम है प्रीपेड और स्मार्ट मीटर लगाने का। उससे नागरिकों को भी फायदा होगा कि बार बार जो उनके पास बिल मांगने का, बिजली बिल कई बार भूल जाते हैं, जमा नहीं होती है, बिजली कटनी की नौबत आ जाती है, इन सारे गलत बिल जाता है। कई बार ये भी कंप्लेंट आती है कि हमारी पंखा लाइट तो बंद है लेकिन बिजली का बिल आ रहा है। तो ये तमाम समस्याओं से छुटकारे का एक बड़ा अच्छा उपाय है टेक्नोलॉजी का सहारा लेना। स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर की योजना इसलिए है कि नागरिकों को ही इसका लाभ दे सके सरकार। ऐसा मानना है कि आपको अगर बिल भुगतान करना भूल जाते हैं या किसी कारण से बिजली काटने के लिए आते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है सहायक साबित होगा। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हितेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2024-25 से पहले चौथी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में किसान संघों के प्रतिनिधि और कृषि अर्थशास्त्री शामिल हुए। इस परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे और साथ ही वित्त सचिव समेत अलग अलग विभागों के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत अलग अलग मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6,959 करोड़ रुपए के लाभांश का चेक सौंपा गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने एसबीआई की तरफ से वित्त मंत्री को ये चेक दिया। चुनाव आयोग ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है। आगामी 25 जून से मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से जुड़ी गतिविधियां शुरू होंगी और इसके तहत हाउसिंग सोसाइटियों, झुग्गी झोपड़ियों, शहरी और ग्रामीण इलाकों में सबसे सुविधाजनक स्थानों पर मतदान केंद्र स्थापित करने को लेकर तैयारियां की जाएंगी। चुनाव आयोग ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में पंजीकरण कराने की अपील की है। और आपको बता दें कि एक बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल मामले से जुड़ी हुई आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। ईडी की याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है और जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता एक बार फिर से विकास सारथी जुड़ गए हैं। विकास, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अभी केजरीवाल को फिलहाल जमानत नहीं दी जाएगी। पहले ही ईडी ने कहा था कि अभी हमें और भी कुछ जानकारियां हैं जो आपके सामने रखनी है और उसी को लेकर उन्होंने कहा कि अभी आपको हमारी बात भी सुननी होगी। और अब ये बात सामने आ गई है कि अरविंद केजरीवाल को अभी फिलहाल कोई जमानत नहीं मिलेगी, ना ही उनको राहत मिलेगी। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? साइमा, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक ये जो रोक लगाई गई है जमानत के आदेश पर वो जारी रहेगी। ये कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से कि अगले 2 से 3 दिन में इस पर एक विस्तृत आदेश कोर्ट की तरफ से जारी किया जाएगा और तब स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या ये जो रोक जो लगाई गई है हाईकोर्ट की तरफ से ये कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पर आज पूरे दिन आर्ग्यूमेंट हुआ और जैसा हमने पहले बताया कि ईडी ने कई बातों पर आपत्ति जताई लोअर कोर्ट के आदेश में, तथ्यों को लेकर के, कानूनी पोजीशंस को लेकर के। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो केस का पूरा रिकॉर्ड देखना चाहेंगे और लोअर कोर्ट के जजमेंट को के ऑर्डर को पूरी तरह उसको देखने के बाद इस निष्कर्ष पर कोर्ट पहुंचेगा कि क्या जमानत का जो आदेश है लोअर कोर्ट का उस पर लगी रोक हटाई जानी चाहिए या नहीं हटाई जानी चाहिए। क्योंकि ईडी का ये कहना है कि ये इसमें बहुत ऐसे पहलू हैं इस लोअर कोर्ट के ऑर्डर में जिनमें गलती है, गड़बड़ियां हैं, तथ्यात्मक रूप से कुछ बातें गलत दर्ज की गई हैं। दूसरा, ईडी का ये सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कि उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया, ना ही उनको रिटन सबमिशन फाइल करने का मौका दिया गया, जो कि इस केस में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बेहद जरूरी थे। ऐसे में इस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाना चाहिए हाईकोर्ट की तरफ से। अब ये सारी चीजें अगले 2 से 3 दिन में साफ हो जाएंगी। साइमा जी विकास, तो अगली तारीख कौन सी मिली है? विकास, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो 2 से 3 दिन के अंदर ये बता रहे थे हमारे संवाददाता कि ये क्लियर हो जाएगा कि अभी फिलहाल जमानत पर और हाई कोर्ट क्या कुछ कह सकती है। हाल फिलहाल अभी यही खबर है कि अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है और ना ही उन पे कोई नरमी दिखाई गई है। ईडी की बात इस वक्त ये थी कि अभी और भी तथ्य हैं जो हमें सामने रखने हैं, कुछ बातें हैं जो अभी और ज़्यादा कहनी है और डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी कुछ बातें उन्होंने सामने रखी थी और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी बात भी सुनी जाए। तो अब खबर ये है कि हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है कि अरविंद केजरीवाल को अभी और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस वार्ता में, जहां संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
एक अच्छा मूड के साथ, अच्छा स्वभाव रख करके शांति से सदन चलाएंगे और पार्लियामेंट का जैसे सिस्टम है उस हिसाब से चलेंगे और मिलजुल करके चुनाव हो गए हैं। चुनाव होने के बाद जनता ने अपना जो निर्णय दे दिया, जिसको सरकार में रहने का निर्देश दिया जनता ने, वो सरकार चलाएंगे। जिसको अपोजिशन के रूप में काम करने का, विपक्ष का भूमिका निभाने के लिए आदेश दिया जनता का, वो निभाएंगे। पक्ष विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट चलाएंगे, ऐसा हमारा उम्मीद था। पार्लियामेंट चलने से पहले ही जो बयान और जो सोशल मीडिया में इन लोगों का पोस्ट और मीडिया में भी, अखबारों में मैंने देखा है, ये देख करके सुन करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और वो भी जिस तरीके से झूठ बोल करके, गुमराह करके बात को रखा, खास करके कांग्रेस पार्टी ने, मैं बहुत ही उसको एक अफसोस के साथ मैं कहना पा रहा हूँ, मुझे शर्म आता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का बातें करते हैं। सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के उन्होंने मुद्दा बनाया। पहले तो एक पोस्ट किया, ट्वीट किया, बाद में इसको पूरा देश भर में इन्होंने एक मुहिम बना दिया इसको। ये जो प्रोटेम स्पीकर का पद है, ये बहुत टेम्पररी, 2 दिन का नए मेंबर को ओथ देने का एक सुविधा के लिए प्रोटेम स्पीकर का पद जो है इसको ऑक्युपाई किया जाता है। फिर तीसरे दिन नए स्पीकर का चुनाव तक अपना भूमिका निभाते हैं। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कुछ करना नहीं है और प्रोटेम स्पीकर का एक लिमिटेड रोल है जो माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर प्रोटेम स्पीकर अपने सीनियर पैनल मेंबर्स के साथ में सदन को चलाते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट वेस्टमिंस्टर यूके का पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में फादर ऑफ द हाउस के टाइटल से जो होता है उससे इंस्पिरेशन होकर के यहाँ अडॉप्ट किया है। और उसके मुताबिक लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर जो कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गेस्ट सर्विंग करते हैं, नॉर्मली उसको फादर ऑफ द हाउस कहते हैं। मैं 2004 में ब्रिटेन में गए थे जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ में, उस समय वहाँ फादर ऑफ द हाउस सर पैट्रिक कॉर्मेक से हमारा बहुत लंबा बातचीत हुआ इस टाइटल के लिए। और वहाँ जब वो सर पैट्रिक कॉर्मेक का एक टर्म बीच में हार गए चुनाव, तो उसको टाइटल्स हटा दिया। बाद में वो चुन के आने का बाद में भी कहा कि ये टाइटल नहीं मिलेगा क्योंकि ब्रेक हो गया। लेकिन बीच में अगर कोई बाय इलेक्शन के माध्यम से सेम हाउस में अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपको कंटिन्यूटी हिसाब किया जाता है। लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ द हाउस, इस कॉन्सेप्ट से प्रोटेम स्पीकर का इंडिया में प्रैक्टिस करते आया है। सबसे पहले तो इन्होंने भर्तृहरि मेहताब जी का नाम को लेकर के आपत्ति किया। भर्तृहरि मेहताब 7 बार कॉन्जिक्यूटिव लोकसभा मेंबर है विदाउट एनी ब्रेक, 7 बार, और इस वक्त वो लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर है अगर हम मंत्री को छोड़े तो। उन्होंने सुरेश कोरीकनल का नाम लिया, उनका टोटल टर्म 8 है उनका, लेकिन 2004 और 1998 में उसका ब्रेक हुआ है। उसका कॉन्जिक्यूटिव 2009 के बाद 4 टर्म है। उसके हिसाब से आप देखा जाएगा तो पिछले बार जब 2019 में 17th लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उस समय वीरेंद्र कुमार जी उसमें 7 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव था और मेनका जी का टोटल टर्म था 8 बार, लेकिन उसका बीच में ब्रेक था चुनाव में, इसलिए उसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म नहीं था। इस हिसाब से कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गेस्ट जो सर्व करते हैं
परंपरागत उसको बनाने का सिस्टम है, उसको हम लोग ने एडॉप्ट किया। यहाँ कोई सिस्टम का उल्लंघन का उसी को लगेगा जिन्होंने सिस्टम और या उसका रूल नहीं पढ़ा है। ये एक परंपरा हम लोग ने फॉलो किया है। और सबसे जो दुखी बात क्या है, कांग्रेस ने जो आपके सामने में आप लोगों ने देखा होगा जो उन्होंने बात रखी है, भर्तृहरि मेहताब जैसे जिसको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला है, 7 टर्म कंसेक्यूटिव है, उसका प्रो टर्म बनने पर जो आपत्ति किया है, हम लोग सब मेंबर है हाउस के, एक दूसरे को इज्जत करना चाहिए। 2004 में आप सोचिए कांग्रेस का कितना काला करतूत और जो छुपाते हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता था, इसलिए मैं शांति से बैठ करके सदन चलाने के लिए तैयारी में था, लेकिन लगातार जो 2 दिन से मैं देख रहा हूं, मेरा दिल में दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं। 2004 में मनमोहन सिंह का सरकार बना और उस समय सबसे सीनियर मेंबर 10 बार के अटल बिहारी वाजपेयी, सोमनाथ चटर्जी, 10 टर्म्स के 2 एमपी थे उस समय। सोमनाथ चटर्जी को पहला दिन प्रो टर्म स्पीकर बनाया, उसके बाद अगले दिन उनको स्पीकर का चुनाव में भाग लेना था, तो नेक्स्ट डे दूसरा प्रो टर्म स्पीकर बनाना था। और उस समय सबसे सीनियर मेंबर था 9 टाइम लोकसभा मेंबर जॉर्ज फर्नांडिस, और इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं बना करके बाला साहेब विखे पाटिल जो 8 टर्म था उनको बनाया। और उसके बाद 10 बार का वाजपेयी जी, 9 टर्म का जॉर्ज फर्नांडिस को इग्नोर किया। तो उस समय कांग्रेस के लोग कहां थे जो आज जो बात बोल रहे हैं? कभी फॉलो हुआ क्या इस तरीके के? उसके बाद उससे पहले भी कई घटना है, मैं अगर कोट करूंगा, जैसे 1956 में हुकुम सिंह जी सीनियर मोस्ट नहीं थे, उनको प्रोटेम स्पीकर बना करके उसको स्पीकर का चुनाव करवाया। 1977 में डीएन तिवारी जी का जो प्रोटेम स्पीकर था, वो भी वो सीनियर मोस्ट मेंबर नहीं था, उसको बनाया। और कई उदाहरण है। और आप जब विखे पाटिल जी का बात करेंगे, उस समय उससे सीनियर पीएम सईद उससे सीनियर थे, और गिरिधर गमांग उससे सीनियर थे। तो उन्होंने जब इतना सीनियर लोगों को ओवरटेक करके जब बनाया, वाजपेयी जी जॉर्ज फर्नांडिस को जब ओवरटेक किया, तो उसको इसका आत्मा को क्या धक्का नहीं लगा था क्या उस समय? क्यों ऐसे फजूल का बात करते हैं बिना मतलब का? ये एक प्रो टर्म स्पीकर का एक जो सिंपल सा एक रोल होता है, एक कन्वेंशन है, उसको लेकर के ये झूठ फैलाने का जो काम कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि इससे सस्ता राजनीति हो नहीं सकता है। उसके बाद आप सोचिए 2005 में ये लोग कोर्ट में गए, कर्नाटका में एक केस हुआ था। ये कपिल सिब्बल से थोड़ा ज्ञान ले लेते। कपिल सिब्बल तो कांग्रेस में थे, अभी कांग्रेस छोड़ के दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर भी बहुत क्लियर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली इसको कहा है, स्पीकर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द कन्वेंशन ऑफ द senior most MLA being named pro tem speaker had no legal force, and Supreme Court also quoted the incident in the Parliament House। और जो सी राम ओला जैसे नेता को ओवरटेक करके जूनियर को जो बनाया, कांग्रेस पार्टी ने ही किया। सी राम ओला जी भी कांग्रेस के ही थे, उसको ओवरटेक करके बनाया, पीएम सईद को ओवरटेक करके बनाया। ये सारा को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई रोल नहीं होता है, सीनियर में से कोई भी होता है। नॉर्मली
सीनियर मोस्ट होते हैं, अगर नहीं तो भी वन ऑफ द सीनियर। इस तरीके के कई उदाहरण हैं, मैं और ज्यादा कोट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय में जितना झूठ बोला है, अभी 8,500 रुपया जो हर महीने में डालेगा बोलता है कांग्रेस ने वादा किया, वो पूरा करो। अभी जितने आदमी जो कांग्रेस ऑफिस में जो राहुल गांधी ने वादा किया है पैसा अकाउंट में डालेगा, वो वादा पूरा करो। इस तरह का झूठ बात बोल करके चुनाव लड़ा। जनता ने पूरी भारत का आप देख लीजिए, एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए के पूरे दल मिलकर के चुनाव लड़ा, पूर्ण बहुमत मिला। फिर हम आराम से सरकार तालमेल के साथ चलाना चाहते हैं। और अभी जो झूठ, चुनाव में भी झूठ बोला और पार्लियामेंट चलने से पहले फिर झूठ शुरू कर दिया। अभी तो पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है 24 तारीख से, उससे पहले ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। कितना झूठ बोलेगा कांग्रेस पार्टी? इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आप लोग के माध्यम से बताता हूं कि झूठ बोलना बंद करें। थैंक यू। एक तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे थे। 24 जून को पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है और विपक्ष की तरफ से लगातार प्रोटेम स्पीकर को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा है उसी को वो साफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेवजह इसको मुद्दा बनाया जा रहा है और पक्ष और विपक्ष को दोनों को मिलकर पार्लियामेंट को एक अच्छे से चलाना चाहिए। खासतौर पर उन्होंने नाम लिया कि भरतहरि मेहताब को लेकर वो बेवजह ही एक मुद्दा बना रहे हैं और दोनों को सहयोग करके इस पार्लियामेंट को एक अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। तो इसी के साथ ही अब समाचारों में हम आपसे अनुमति चाहते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। नमस्कार। स्वदेशी